वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर हम आपके सामने हैं। टुडे might be possible that with your support and my work, today is the last class which relates to the chapter number 6 from NCERT book or in biology section chapter number 1. आज हम जिस लाइफ प्रोसेस को पढ़ रहे थे कंटिन्यूसली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर ऑफ लाइफ प्रोसेस. Might be possible that today we are going to complete the chapter life process, in which from day one when we started our journey, जब हम लोगों ने शुरुआत की थी इस चैप्टर को पढ़ने की, इस चैप्टर को समझने की, तो हर पड़ाव से होते हुए by each and every steps, each and every points we discussed about the nutritions, we discussed about the types of nutritions, we discussed about the photosynthesis, we discussed about the generation or the making of energy or getting energy from the foods under the heterotropic nutritions. हम लोगों ने काफ़ी कुछ जानकारी हासिल करी और हम लोग आगे बढ़ते गए. In which under the heterotropic nutritions, after understanding the fact that the human being or animal is getting food from outside, due to that they comes under heterotropic nutritions and how it works, and afterward we moved to the next topic in which we discuss about the respiratory system, we discuss about the digestive system, we discuss about the function of heart. In the last, today I am in front of you. When before starting the today's topic, I am just trying to give you the snapshot of the previous topics that what we discussed, for just a kind of revision for your mind. आपके दिमाग में पुनः उस चीज़ की पुनरावृत्ति हो जाए, यह एक शिक्षक का कर्तव्य होता है. अतः मैं दो लाइन, तीन लाइन, by the help of 2 or 3 lines by each point we will revise each and everything. Nutritions means क्या होता है? The substance, the object by which we can able to get energy. So on the behalf of getting energy under the nutritions, that will be divided into 2 types: autotrophic, heterotropic. If the living organism is capable to originate or to develop the food by itself only, and they will get energy from the produced food, after getting it, that comes under autotrophic. And if we will get the food from outside, that will come under heterotropic. For the autotrophic, the example is photosynthesis. By the help of photosynthesis, with the help of leaves, by the presence of stomata on the leaves, sunlight, water, carbon dioxide, each and every plant is capable to generate oxygen, and with oxygen they will also get the food material and they will get the energy. Under the heterotropic nutritions, we discuss about the animals and human being, and I spoke it to you that how we can get food from outside, how it we will take. So now the point is here. For that, for the taking process of the food, we discussed under the digestive system. So here is the first one, digestive system. पाचन तंत्र के अधीन मैंने आप लोगों को बताया that we will take the food from our mouth with the help of, after chewing the thing, whatever the object we will take in our mouth, with after due to chewing we will produce like saliva will produce by the human body, and with the help of saliva it enters into my body. A stomach will be known as the storage of the food. Here the food is again crushed up by the mechanism, और फिर वहाँ से स्मॉल इंस्टेंटाइन, लार्ज इंस्टेंटाइन, एनस एंड ऑल के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है. एंड वॉट एवर द एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड, वॉट एवर द फ्रूटफुल थिंग्स कंपोनेंट विल बी प्रोड्यूस्ड, दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंस्टेंटाइन एंड लास्टली बाय द लार्ज इंस्टेंटाइन, और उसके बाद हम लोग उसका उत्सर्जन कर देते हैं. सो द हेयर वॉट एवर थिंग्स आर प्रेजेंट इन द ब्रैकेट
Actually, these are the 5 important diagrams what you have to practice, and you have to make the notes, because in the 5 might be possible or 100% possible, 90% possible that you have to explain any one of them. So in the conclusion I wrote all the 5 points by which anyone will be asked by the questionnaire in the annual examination of CBSE. So after digestive system हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा. हाउ वी विल इनहेल गैस and how it will move toward the trachea and all. It will passes through the windpipe, and lastly with the help of alveoli. Alveoli is nothing but part of the respiratory system which is responsible for the exchange of the gaseous substance. Like they will absorb carbon dioxide from the body and they will pass oxygen to the body, and with the help of alveoli what will happen, the oxygen will circulate into the body with the help of blood. And during after the completion of respiratory system, on that class only we discussed about the heart system, that how the heart is capable for the pumping. Actually मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था. हिंदी इंग्लिश सब इसलिए करता हूँ ताकि आप में रोचकता बनी रहे कि भाई हार्ट कुछ है नहीं, वो पंपिंग करता है. पंपिंग करता है मीन्स जब वो प्रेशर डालता है तो द ब्लड विल मूव टुवर्ड द बॉडी, एंड जब वो फैलता है इट मीन्स वो शक होता है. देन व्हाट विल ड्यूरिंग दैट प्रोसेस व्हाट विल हैपन, द सर्कुलेटेड ब्लड विल कम अगेन to the heart or collected by the heart. और इस प्रोसेस के दौरान ड्यूरिंग द पंपिंग एंड शकिंग, लाइक ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हाट विल हैपन, द वॉट एवर द ब्लड will throw out by the heart, that blood will be known as oxygen rich blood. तो वो आपके शरीर में चला गया, ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब हो गया, एंड जब ऑक्सीजन शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब हुआ देन व्हाट विल हैपन, दे विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. और फिर ड्यूरिंग द दिस वन सेकेंड प्रोसेस ऑफ द पंपिंग, जब वो फैलता है देन व्हाट विल हैपन, तो वो चीज़ें फिर वापस जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच्ड ब्लड जो है दैट विल अगेन कम टू द हार्ट. बट हार्ट इज ओनली responsible for the transportation of blood. Heart is only responsible for the transportation of blood. Actually you have to keep memorize that after getting blood into the heart it will be forwarded to the lungs, where alveoli is helpful for the exchange of the gas. So that's why on my previous session I told it to you that the function of heart and the function of alveoli or the function of respiratory system is simultaneously connected to each other. हम इन दोनों के बिना एक स्वस्थ रक्त के प्रवाह को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं. उसके बाद अब जो है नाउ वी आर कमिंग फॉर द टूडेज टॉपिक. जब हमने अब देखो एक शरीर के बारे में मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ. एक सिस्टम के बारे में वहाँ चर्चा नहीं है, नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम आपको अपने क्लास में भी नहीं पढ़ना है, बट इतना चूंकि जब वेन एवर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू देन डेफिनेटली आई विल गिव यू सम पॉइंट्स और सम फैक्ट्स विच रिलेट्स टू योर चैप्टर और विच डज नॉट रिलेट्स टू योर चैप्टर. बिकॉज अभी दोज हु आर व्यूइंग मी, दोज हु आर वॉचिंग मी, डेफिनेटली मैं +2 तक को देखता हूं तो मैं जानता हूं कि काफ़ी बच्चे आगे चल के बायोलॉजी को भी पकड़ते हैं. तो चीज़ें जो है ना, एक्चुअली इट्स अ ड्यूटी ऑफ टीचर. मैं टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम योर मेंटर. आप पढ़ते हो, मैं आपको मार्गदर्शित करता हूँ. आप पढ़ाई खुद करते हैं. एक सही शिक्षक होता है जो बच्चों को प्रेरित करता है कि तुम पढ़ो, और जहाँ दुविधा हो, जहाँ समझने में दिक्कत हो वो चीज़ करिए. और आज अभी 10 सेकंड हो सकता है मेरा आपके सेशन से इधर उधर हो, मैं उसको आगे बढ़ा लूँगा, उसके लिए टेंशन नहीं है. ये चीज़ें ना अब आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल तक मिलेंगी. अब नाउ यू आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ क्लास 3, 4 and 5 वेयर द टीचर विल शाउट अगेन एंड अगेन दैट मेंटेन साइलेंस, मेंटेन साइलेंस, मेंटेन साइलेंस. वो नहीं होना है. अब आप रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, अब आप जिम्मेवार हो रहे हैं. आप 11-12 करेंगे. आप 11-12 में तो थोड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, सारे ट्यूशन्स और कोचिंग सेंटर्स होते हैं, वो थोड़ा फोर्स भी करते हैं. बट वेन एवर यू विल इंटर इन टू इंजीनियरिंग और मेडिकल, यू हैव टू रिसर्च, यू हैव टू स्टडी बाई योर सेल्फ ओनली.
teacher they will come along with some slides and all, with some points they will write it on the board and they will just repeat whatever the things will be present on the board. उनका काम हो गया. ये बच्चों का काम होता है कि आप कितना वर्कआउट करते हैं उस पर, आप उसको कितना डीपली जाते हैं. बिकॉज इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन द ब्रीफ. तो अब आप लोग उस पड़ाव में आ गए हैं और मैं थोड़ा फ्यूजन करके रखता हूँ, मिलाता हूँ. तो कुछ जिम्मेवारियाँ मैं कभी कभी आप लोगों को भी देता हूँ. लाइक यस्टरडे आई टोल्ड इट टू यू दैट राइट डाउन द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड ऑल. अब आज मैं याद कल नहीं था, मैं आज पूछता हूँ कि आप लोगों में से किस किस ने उस पूरे रिएक्शन को लिखा. एक चीज़ याद रखो, whenever I go to the for the evaluation of copy and all, मैं देखता हूँ you can easily score up to 75, 76, 77 नंबर. आप सीबीएसई में आसानी से नंबर पा सकते हैं. आपको लिखना होगा, ज़्यादा भी नहीं लिखना होगा. अभी हो सकता है तुम लोगों में से कल मेरी बात तो तुम लोगों को समझ में नहीं आई होगी, तुम लोगों ने फोटोसिंथेसिस वाले कंप्लीट रिएक्शन को नहीं लिखा होगा. लेकिन तुम याद रखो ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन ऑफ द कॉपी जो एचई होते हैं, जो हेड एग्जामिनर होते हैं, वो यही कहते हैं कि बच्चे का कॉन्सेप्ट देखिए. अगर बच्चा मूल तथ्य को लिखता है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वी विल फाइंड आउट द कंप्लीट ब्रीफ कि भाई काफ़ी थ्योरी में ब्ला 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 काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, वो ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ. और ऐसी कोई बात नहीं है कि वाई आई यस्टरडे टोल्ड इट टू यू दैट राइट द कंप्लीट फॉर्मूला. कुछ डिफरेंट लिखना होगा इफ़ यू वांट. क्यों? वो जब 80 आउट ऑफ 80 पढ़ता है ना तो वो कॉपी 3-4 बार जांच होती है. तो जो आपको दिए वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए ना वो चीज़ रखते हैं कि देखिए सर ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस स्टूडेंट एंड द रिमेनिंग अदर स्टूडेंट्स, इसने इस चीज़ को लिखा है. सो दैट्स वाई मैं बोलता हूँ कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द क्लास मूव आउट टू गूगल एंड फाइंड सम मोर फैक्ट्स वॉट एवर इज प्रेजेंट इन योर बुक. सिर्फ ये जो बुक है एनसीईआरटी की, ये 3 चीज़ों को मिलाकर बन जाती है. इससे आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि मैं 80 आउट ऑफ 80 लाऊंगा. सो आपको अलग से भी परिश्रम करना पड़ेगा. अब हम लोग आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पे. हाँ, तो मैंने बताया नर्वस सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन नर्वस सिस्टम के बारे में 2 लाइन याद रखना. जो कंप्लीट शरीर का जो हम लोग एक्शन एंड रिएक्शन करते हैं, जो कंप्लीट शरीर की प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो सभी मस्तिष्क से प्रभावित होती हैं. और जो मस्तिष्क के द्वारा हमारे संपूर्ण शरीर को, इट मीन्स बाय द हेल्प ऑफ, विथ द हेल्प ऑफ ब्रेन, वॉट एवर द कमांड्स शुड बी गिवन completely to our body, that the system is comes under नर्वस सिस्टम. द सिस्टम कम्स अंडर नर्वस सिस्टम. तो वो नहीं पढ़ना था तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दिए. उसके बाद अब शरीर के नीचे आते हैं. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? रेस्पिरेटरी सिस्टम. हम लोगों ने क्या पढ़ा? रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम के नीचे जाके हमने क्या पढ़ा? डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम पेट के पास. अब डाइजेस्टिव सिस्टम भी जब हो गया था तो इसके साथ साथ हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम. अब आप देख रहे हैं हम लोग यहां से लेके यहां तक को पहुंच गए. सो टुडे द लास्ट सेगमेंट इज व्हाट? एक्सक्रीटरी सिस्टम. लास्ट सेगमेंट इज व्हाट? एक्सक्रीटरी सिस्टम. क्यों? क्योंकि अंडर द heterotropic nutritions, Priya kindly unmute yourself, because during the heterotropic nutritions हम लोगों ने खाना खाया, खाना पचा, किस तरह से रक्त प्रवाह के द्वारा जो है हम पोषक तत्वों को शरीर के भिन्न भिन्न अंगों तक पहुंचाए. तो अब आज लास्ट हम होगा कि जो अपशिष्ट पदार्थ है, वॉट एवर द रिमेनिंग वेस्ट विल बी प्रेजेंट इन आवर बॉडी, हाउ वी विल इरेक्ट. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सॉलिड वेस्ट थे, whatever the solid waste was there, the removal of the solid waste, that we will understand in the digestive system. But what's about the liquid thing? जो द्रवित अवस्था में है, जो द्रव अवस्था में है, उसका क्या हुआ? So today we are going to discuss about the liquid waste. Today we are discuss about the liquid waste. So excretory system is nothing. This system is only responsible for the erection of the, निष्कासन के लिए वो ये होता है लिक्विड थिंग को. सो वॉट एवर द वाटर एंड ड्यूरिंग द फूडिंग हैबिट वी विल टेक सम वाटर. अब शरीर के अंदर जा रहा है तो आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी सम इंपॉर्टेंट और सम वैल्यूएबल कंटेंट्स दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द इंस्टेंटाइन एंड ऑल. व्हाट्स अबाउट द बैड एलिमेंट, जो गलत वस्तुएं हैं? व्हाट अबाउट द अनफ्रूटेबल थिंग, जो हमारे लिए अनप्रॉफिटेबल है, अलाभकारी है? उन चीज़ों का क्या होगा?
तो उनको हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम के माध्यम से निकालते हैं। एंड फॉर द इरेक्शन ऑफ द लिक्विड which contains the bad element, that will be done by the presence of kidney, that will be done by the presence of kidney, वो किडनी के माध्यम से होता है। It means what? Kidney is responsible for the filtration of the water, kidney is responsible for the filtration of the water or blood for the removal of the वेस्ट प्रोडक्ट विच प्रेजेंट्स इन द ब्लड। सो आपको याद रखना है कि किडनी ही वह उपकरण है मानव शरीर में जो कि पूरे ब्लड को डायलिसिस कर लेता है, वाटर को रिमूव कर लेता है, वेस्ट को निकाल लेता है, एंड दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्शन ऑफ द वेस्ट। आपको एक चीज जानकारी नहीं होगी, दिस सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आई रोट इट ऑन द बोर्ड। सो पहला चीज कि what is responsible what responsible kidney is removal of water, salt etc waste। तो वाटर तो निकल ही रहा है, सॉल्ट भी उसमें निकलता है, यूरिक एसिड है। वेस्ट क्या है? वेस्ट है क्या? सो वेस्ट इज यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया एक्सेट्रा। दीज आर द वेस्ट that will be erected with the help of kidney during the process of erection system, and the most important thing that when we will urinate, आप लोग जब भी urinate करते होंगे, then you will see that it comes under the section of liquid form. So actually it contains 95% of water and 5% of waste. 5% of waste means 5% in the 5% salt, uric acid, CO2, ammonia, these kind of things comes under the 5%, and the 95% things water. So in the non technical term, तुमको याद होगा, तुम लोग जानते होगे, हम लोग जितना पानी पिएंगे ना, पेशाब उतना ही ज़्यादा लगता है, यूरिनेट हम लोग उतना ही ज़्यादा करते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू दैट कि हम लोग कितना पानी पीते हैं, उसी हिसाब से यूरिनेशन होता है, उसी हिसाब से फिल्ट्राइजेशन होता है और शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाता है। एंड दैट्स वाई आप लोगों को कहा जाता है, दिस इज द कॉमन थिंग विच इफ यू विल गो नियर टू द एनी फिजिशियन एंड ऑल, कि भाई खूब पानी पियो, टेक मोर वाटर, 10 बार दिन भर में कम से कम 10 बार पानी पीना चाहिए, 10 times per day। Average consumption of water should be 3, 4, 5 liter, 4 to 5 liter water you have to consume if you want to, because during the dialysis, जब आपका ब्लड डायलिसिस होता है किडनी के माध्यम से, तो क्या होता है, उसको जितना पानी मिला रहेगा ना, वो किडनी पर लोड उतना ही कम पड़ेगा, वो किडनी खराब होने की संभावना कम रहेगी। इसलिए कहा जाता है कि दिन में 10 times each 1 glass, डेफिनेटली भाई 1 गिलास मीन्स ½ लीटर, तो मैं 5 लीटर की ही बात कर रहा हूं, तो उतना पानी आपको पीना चाहिए। सो इसीलिए यहां लिखा हुआ इट फिल्टर्स द ब्लड। हमारे किडनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। व्हाई आई एम सेइंग दैट यू हैव टू टेक 5 लीटर ऑफ वाटर पर डे, बिकॉज किडनी पर लोड काफी ज्यादा होता है, वेरी मच लोड ऑन द किडनी। इट प्यूरिफाइज वॉट एवर द ब्लड्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी 400 times पर डे। जो किडनी होता है वो 400 बार दिन भर में आपके पूरे रक्त को प्यूरिफाई करने का काम करता है। और उसके लोड को हम लोग कैसे घटा सकते हैं? विथ द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर रहेगा, उसका काम करने का की जो क्षमता है बनी रहती है और उसके कार्य प्रणाली पर उतना ही कम भार पड़ता है। सो अब जब आप एक्सक्रेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा फनी है, बट इन द बायोलॉजिकल सेक्शन आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू दैट व्हाट विल हैपन। हम लोगों को पेशाब लग जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि इफ यू विल फील दैट आई हैव टू यूरिनेट इमीडिएटली आई हैव टू यूरिनेट। सो इन द एक्सक्रेटरी सिस्टम ब्लैडर इज प्रेजेंट। इफ यू विल ड्रॉ द डायग्राम यू विल सी दैट ब्लैडर इज प्रेजेंट। एक्चुअली दैट ब्लैडर इज रिस्पॉन्सिबल, जब वो फैलता है मैक्सिमम अप टू 400 ml, 400 ml उसकी कैपेसिटी होती है कि वो आपके पेशाब को, आपके यूरिन को जो है स्टोर कर रखे। एंड वेन एवर यू विल फील लाइक इफ यू विल मूविंग ऑन द कार एंड ऑल, इमीडिएटली हम लोग तो नहीं करेंगे। सो फॉर द स्टोरेज ऑफ दैट यूरिन 400, द कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर इज 400, जो कि आपके शरीर में उपलब्ध होता है। एंड चूंकि ऑनलाइन क्लास है, बच्चे सवाल तो पूछेंगे नहीं, पूछेंगे तो पढ़ाने में दिक्कत होगी। भाई एक छोटा सा सवाल है कि हम लोग सुनते हैं सर कि हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो ये ट्रांसप्लांट है क्या, इसका मतलब क्या है, व्हाट इट मीन्स, कि क्या हम बिना किडनी के भी रह सकते हैं? हाँ, आप रह सकते हैं।
बिना, क्यों? किडनी का तो काम है डायलिसिस करना. डायलिसिस मीन्स फिल्टराइजेशन ऑफ ब्लड एंड वाटर, रिमूवल ऑफ द वेस्ट थिंग फ्रॉम द ब्लड. तो ये विथ द हेल्प ऑफ डायलिसिस होता है. लाइक अगर आप लोगों में कोई सोसाइटी में होगा तो आप डेफिनेटली सुनते होंगे दैट भाई मिस्टर ए की किडनी खराब हो गई, सो अब वो डायलिसिस पर हैं. तो डायलिसिस इज अ प्रोसेस विच इज नथिंग but a process which is helpful for the purification of blood and removal of the waste from the body. So dialysis एक प्रकार की प्रक्रिया है जो कि मैन मेड होती है, आर्टिफिशियल होती है, लेकिन ये किडनी के बदले हमारे शरीर के अंदर के लिक्विड्स को प्यूरिफाई करने का काम करता है और जो रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है, जो वेस्ट होता है उसको रिमूव करने में सहायक होता है. एंड दैट्स वाई द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम द फेल्योर ऑफ द किडनी और द लैक ऑफ फंक्शन ऑफ द किडनी, दैट पीपल विल ऑलवेज अंडरगो द ट्रीटमेंट ऑफ डायलिसिस. डायलिसिस के माध्यम से हम कुछ वर्ष बच सकते हैं, वो किडनी खराब होने का विकल्प होता है. एंड भाई अब एक बड़ा ही मजेदार चीज आज मैं देख रहा था, मैं पढ़ रहा था, जो कि किताबें में नहीं है, दैट थिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द बुक. यूरिन का कलर वाइट भी होता है, कभी येलो होगा, कभी डार्क येलो होगा, मतलब हल्का पीला टाइप का होता है यूरिन. क्यों होता है? आप लोग में से मैं दावे के साथ कहता हूं, ईच एंड एवरी वन इज नोइंग दैट व्हाट इज द रीजन फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स. व्हाट इज द रीजन फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स? एनीवन कैन टेल इट टू मी दैट ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट द कलर ऑफ लीव्स आर ग्रीन? है कि नहीं? बोल देते हो ना. यूरिन का कलर ग्रीन येलो क्यों होता है? उसमें भी तो कोई पिगमेंट होता होगा. सो हियर आई रोट इट दैट द पिगमेंट यूरोक्रोम, your chrome is responsible for the yellow color of the urine. ये चीज आपको हमेशा याद रखना है. I will give you the snapshot. URCHROME is the responsible pigment which is responsible for the yellow color of the urine. So इस चीज को आपको याद रखना है. और 10 बार पानी पीने की बात मैंने कही है. दिस पॉइंट. अब हम लोग आते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक. किडनी के बारे में तो समझ गए, किडनी खराब होने के भी बारे में समझ गए कि इफ किडनी इज नॉट एबल टू वर्क देन व्हाट विल हैपन. वी हैव अंडरगो टू द ट्रीटमेंट ऑफ डायलिसिस एंड ऑल. बट इफ वी स्पीक्स that in the class 9th during the chapter of fundamental unit of life, we discussed that the life is made up of cell, tissue, organ system, human body है. तो उसी प्रकार से वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द किडनी फॉर्म्स. सो एक्चुअली किडनी इज मेड अप ऑफ नेफ्रॉन्स. किडनी का निर्माण नेफ्रॉन्स से होता है. नेफ्रॉन्स एक छोटी इकाई होती है किडनी की, जिसके मिलने से जिस स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जिस आकृति का निर्माण होता है, उसको किडनी कहते हैं. सो हियर आई रोट इट दैट द nephron is nothing but microscopic structural and functional unit. Nephron is nothing but a microscopic, काफी सूक्ष्म structural and functional unit of kidney. नेफ्रॉन से ही किडनी का निर्माण होता है. नेफ्रॉन किडनी की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं. The most important thing you have to understand. दूसरा कि भाई एक किडनी में कितना नेफ्रॉन होता है? अगर छोटी इकाई है तो इज इट पॉसिबल टू मेजर दैट हाउ मेनी numbers of nephrons are present in a kidney? Yes, nephrons in a kidney, there are total number of 2 lakhs to 18 lakhs. 2 lakhs to 18 lakhs nephrons are present in a kidney. The total number of nephrons in the kidney is between 2 lakhs to 18 lakhs. Second point. And the third one, फॉर्मेशन ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन बनता कैसे है? डेफिनेटली फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल है, लेकिन चूंकि ये यूनिसेलुलर तो है नहीं, सो ड्यू टू दैट नेफ्रॉन्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स, बट इट इज इन फॉर्म ऑफ टिश्यू. अब ऑर्गन क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब सवाल है ना, ऑर्गन क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिकॉज द ऑर्गन इज किडनी. सो नेफ्रॉन्स कम्स अंडर टिश्यू स्ट्रक्चर. अगर आप साइंस पढ़ते हैं ना तो लॉजिक को खोजते रहना है. वी हैव टू फाइंड आउट द लॉजिक दैट व्हाई आई एम यूजिंग टर्म ऑफ टिश्यू, बिकॉज द टर्म ऑर्गन इज यूज्ड फॉर किडनी. सो नेफ्रॉन टर्म
comes between organ and cells. So it is a tissue. It is a tissue. Nephrons are made up of two types, two parts. First one is renal tube and second one is renal corpus. सेकेंड वन इज रेनल कॉर्पस. ये आपके नेफ्रॉन को दो सेगमेंट में हम लोग लेके चलते हैं. एक होता है रेनल ट्यूब और एक होता है रेनल कॉर्पस. एंड द लीस्ट एंड नॉट लास्ट दैट, अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं बायोलॉजी में तो हमें यह भी जानना चाहिए, जिस तरह से कोशिका टिश्यू, रॉबर्ट हुक वगैरह वगैरह के बारे में हम लोग पढ़े, वी डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो द फाउंडर ऑफ नेफ्रॉन, हु फाउंडेड नेफ्रॉन, किन्होंने नेफ्रॉन की खोज की? सो द फाउंडर ऑफ नेफ्रॉन इज विलियम बॉमेन. द फाउंडर ऑफ नेफ्रॉन इज विलियम बॉमेन. सो up to right now we discussed about the complete part of the life process, in which digestive system, respiratory system, heart, excretory system and nephron we discussed. Now it's my request to all the students, those who are viewing me, those who are associates with me, those who are relates with me, kindly make the pictures of all the given 5 things and write the description in your own language, because definitely that will be helpful for getting 3 or 5 marks in your 10th examination. So all of you have to memorize all the things, important facts and all. Thank you. Have a great day. We will move toward the next topic.